Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the optimum depth of sowing in wheat? Wheat is very important crop and depth is very important, which decide the tillering and the overall plant growth. And the grain yield is affected by tillering, and this tillering is affected by depth of sowing. So in general, in India, we grow Mexican wheat varieties, and these varieties are dwarf and collectile length is not large, collectile length is small. That's why this wheat is not sown deep. And if we go for deep sowing, then overall growth is affected, and if go for the shallow sowing, then also tilling is affected. So what is the impact of depth of sowing? I'll show here. Suppose this is the soil surface, and these are the different depths, and the wheat seed is sown suppose at 2 centimeter depth, and this seed is sown at 5 centimeter depth, and this seed is sown suppose wheat seed at 7 or 8 centimeter depth. Suppose it is 8 centimeter depth, 7 to 8 centimeter. So these are the different depth of sowing, and the roots emerge after sowing. Roots emerge like that, and no problem in the root development, and then collectile growth is there, radical growth is there, plumule growth is there. So as the plumule develop, then there is the first germination, then the emergence, and this is also the emergence, and here there is no emergence. सो दिस इज द पिक्चर और डायग्राम कि अगर हम वीट सीड को, जो हमारी वीट सीड है, उसको हम डिफरेंट डेप्थ पे हम सोइंग करेंगे सॉइल में, तो जो प्लूम्यूल ग्रोथ होगी, जो उसमें इमरजेंस होगा, फर्स्ट लीफ जो आएगी, उसका डायग्राम कैसे होगा, वो इस तरह से रहेगा कि अगर शैलो सोएंगे 2 to 3 सेंटीमीटर है तो यही रहेगा, 4 to 5 है तो इस तरह से रहेगा, और 8 सेंटीमीटर है, 7 to 8 है तो ये चांस है कि ये इमर्ज ही ना करे और ऊपर ही ना आए. Then when there is a crown root initiation, this is the temporary root system. This is the seminal root system which start. जो शुरू में वीट सीड से जो रूट सिस्टम होता है, सेमिनल रूट सिस्टम होता है, टेम्परेरी होता है और 25-30 दिन बाद खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो क्राउन रूट बनती है ऊपर, वहां से परमानेंट रूट सिस्टम डेवलप होता है. सो दिस इज द बेसल नोड, basal node where the roots, permanent root system develop, and this is the place, this is the crown root, which is responsible for tiller emergence. तो ये जो crown root बनता है, यही responsible होता है रूट डेवलपमेंट के लिए और टिलरिंग के लिए. तो यहाँ जो क्राउन रूट बनेगा 20-21 दिन बाद, वो यहाँ डेप्थ पे होगा. ये जो डिस्टेंस रहती है सॉइल सरफेस से 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड द टोटल डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर. एंड हेयर इट इज the permanent root system, but the crown root is there, but it is very poor seedling emergence, and after 20 or 22 days 3 to 4 leaf stage is there, and here 3 to 4 leaf stage is there. but this crown root, जो ये crown root जो बन रही है, और ये crown root जिसे हम CRI कहते हैं, crown root initiation stage, जो 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग आती है, इसकी जो पोजीशन होगी वो सब में अलग अलग होगी. ये शैलो सोइंग जो है, जिसको हम शैलो सोइंग बोल रहे हैं, ये शैलो सोइंग में यहां देखिए इट इज वेरी क्लोज टू सॉइल सरफेस. तो ये जो सॉइल सरफेस है वेरी क्लोज है, तो इसका रूट सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, टिलर्स बहुत पुअरली डेवलप होंगे और लॉजिंग का चांस ज्यादा है. दूसरा, सीड जब इनिशियली हमने ऊपर डाला है तो ये सब्जेक्टेड है, मतलब कि इसमें बर्ड डैमेज हो सकता है, चिड़िया इसको खा सकती हैं, सॉइल रोडेशन को एक्सपोज हो जाएगा. ये जो बर्ड्स है, बेसल नोड इज एक्सपोज्ड, मे बी एक्सपोज ऑन सॉइल सरफेस, तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो टिलरिंग इज अफेक्टेड, पुअर टिलरिंग इज देयर, सो ओवरऑल ग्रोथ इज अफेक्टेड एंड मे बी सब्जेक्टेड टू लॉजिंग. तो लॉजिंग भी हो सकता है, अगर तेज हवा चले, पानी बहुत ज्यादा हो तो ये गिर भी सकता है. अगर मैं शैलो स्विंग करी है तो इसकी जो टिलर्स रहेंगे, स्पार्स रहेंगे, कम रहेंगे, उनका डेवलपमेंट कम होगा. यहाँ जो हमारी ये ऑप्टिमम डेप्थ है, ये जिसे हम मीडियम डेप्थ हम कह सकते हैं, और ये जो डीप है, ये डीप सोइंग जिसे हम कह रहे हैं. यहाँ डीप सोइंग में देखिए, पहला तो ये हो सकता है मे बी चांस दैट इट इज नॉट इमर्ज्ड, ये इमर्ज ही ना करे, और अगर इमर्ज भी करता है तो देखिए जो इसको फूड की जितनी एनर्जी इसको ऊपर कोलेप्टाइल में जाएगी तो शॉर्ट रहेगा प्लांट. सेकेंडली,
जो टिलर्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ CRI से, ये जो क्राउन है इसका, हेयर इज द क्राउन, जो क्राउन रूट निकल रही है, तो जो टिलर्स निकलेंगे वो बहुत ही कम निकलेंगे, तो टिलर प्रोडक्शन इज पुअर। तो यहाँ टिलर प्रोडक्शन बहुत कम होगा। यहाँ टिलर्स तो हैं लेकिन क्या है, बहुत सॉइल सरफेस के पास में है, तो उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा सॉइल सरफेस के क्लोज, और ये सीड भी जो ऊपर सरफेस पर रहेगा तो इसमें इंसेक्ट ज़्यादा लगेंगे या चिड़िया इसे खा सकती है, सोलर रेडिएशन से हो जाएगा। तो यहाँ भी टिलरिंग अफेक्टेड हो रही है। टिलर्स आर बैडली अफेक्टेड इन दिस केस, टिलर्स आर आल्सो बैडली अफेक्टेड इन दिस केस। बट इफ this is the situation, this is the optimum depth 4 to 5 centimeter, then it is a proper root development, this is the proper permanent root system develop, and which is responsible for nutrient and moisture absorption. That's why it will give the better growth, better shoot growth, more tillering, more ear size, more grain yield. तो यहाँ जो है grain yield क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसलिए in case of wheat, shallow sowing is not desirable, poor tiller development, poor plant development, and similarly deep sowing, in case of deep sowing there is a chance of failure of emergency नहीं होगा। दूसरा आप देखिए नीचे है जो टिलर्स बहुत कम निकलेंगे, ओवरऑल शूट ग्रोथ क्या रहेगी, पुअर रहेगी। दैट्स वाई डीप सोइंग इज नॉट एडवाइजेबल, एंड this 5 centimeter, 4 to 5 centimeter is for Mexican dwarf varieties, dwarf wheat varieties. So this is the sowing depth. But if it is a local variety, कोई ट्रेडिशनल वैरायटी है, लोकल वैरायटी है, कोलेप्टाइल इज लॉन्ग, जिसका कोलेप्टाइल लंबा है, then we can go for deeper sowing 7 to 8 centimeter, then कोलेप्टाइल emerge above the soil surface easily. तो जिसका कोलेप्टाइल लेंथ है ज़्यादा है, कोई लोकल वैरायटी है, तो उसमें हम उसको बो सकते हैं डीप, तो उसका कोलेप्टाइल ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिकन जो ड्वार्फ वैरायटी है, इनका जो कोलेप्टाइल है वो शॉर्ट है, तो कोलेप्टाइल लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोलेप्टाइल लेंथ अगर ऐसी है कि वो नहीं आ पा रही है तो इमर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी में क्या है, कोलेप्टाइल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, बहुत लॉन्ग नहीं होती हैं। तो दैट्स वाई अगर हम बहुत डीपर में जाएंगे तो इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ रेनफेड सिचुएशन, moisture is limitation and moisture is not available on upper surface, and this up to 5 centimeter, moisture may be available up to 7 to 8 centimeter. तो जो रेनफेड सिचुएशन है वहाँ मॉइस्चर जो डीपर लेयर में होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इन दैट केस, इन रेनफेड सिचुएशन देन डीपर सोइंग इज एडवाइजेबल विद द लॉन्ग कोलेप्टाइल लेंथ। तो अगर ऐसी वैरायटी जिसका कोलेप्टाइल लेंथ ज़्यादा है तो उसके हम डीपर स्विंग में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर 7 to 8 सेंटीमीटर पे है, 4 to 5 सेंटीमीटर पे नहीं है। तो इसलिए रेनफेड सिचुएशन में जो वैरायटीज होती हैं उनकी कोलेप्टाइल लेंथ ज़्यादा होती है। तो कोलेप्टाइल लेंथ इज मोर, कोलेप्टाइल लेंथ इज मोर इन रेनफेड सिचुएशन। तो रेनफेड सिचुएशन के लिए जो वैरायटी डेवलप की जाती हैं या जो वैरायटी हैं उनकी कोलेप्टाइल लेंथ ज़्यादा है, तो इसी कारण से वो उनको हम डीपर स्विंग करते हैं और वो सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन अगर डॉर्फ वैरायटी को अगर हम डीपर में जाएंगे तो उसका पुअर इमरजेंसी होगा। तो इसी कारण से जो रेनफेड सिचुएशन के लिए वैरायटी है वो अलग हैं और इरिगेटेड की जो है वो अलग हैं। तो यहाँ जो है रेनफेड सिचुएशन में डीपर स्विंग जरूरी है, बिकॉज मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल अप टू 5 सेंटीमीटर, इट इज अवेलेबल 7 to 8 सेंटीमीटर, देन वी गो फॉर deeper swing. तो such type of varieties have long coleoptile length in rainfed situation. तो rainfed situation में इसलिए हम उन्हीं varieties को बोते हैं जिनकी coleoptile length ज़्यादा है। तो वही variety popular होती है rainfed situation में, क्योंकि अगर हम short coleoptile length को बोएंगे तो ये emerge नहीं करेगा। तो अगर हम जीरो टिलेज कर रहे हैं, सपोज जीरो टिलेज सोइंग एंड डेप्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, देन देयर इज चांस ऑफ पुअर टिलरिंग, बिकॉज दिस बर्ड इज वेरी नियर टू soil surface and subjected to insect damage or bird damage and maybe lodging and poor tillering. But in this case, this is the ideal situation. So this bird is crown root is 2 to 3 centimeter below the soil surface, and it gives the proper root system and the proper tillering. So this is the reason that Mexican dwarf variety जो है उनमें the optimum depth of sowing is 4 to 5 centimeter. So this is the optimum depth of Mexican dwarf wheat variety 4 to 5 सेंटीमीटर, विच इज डिसाइडेड बाय कोलेप्टाइल लेंथ। तो जो हमारे पास अधिकतर जो इरिगेटेड सिचुएशन के लिए हैं वो मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, और इसी कारण से उसकी दैट्स वाई सोइंग डेप्थ इज केप्ट 4 to 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ सोइंग ऑन द रूट डेवलपमेंट,
tillering, shoot development, ear size development, and overall grain yield. Thank you very much.